Assalamu alaikum. I'm Shahzaid Ahmad, and today I'm taking class of English history with BS third in the course of Anglo-Saxon to Restoration period history. So this is our fifth online class with BS third. So first of all, I will give you brief summary of previous lectures in which we have discussed about different kings after William the Conqueror. We have discussed about William Rufus, his son, and after that we have discussed about the second son of William the Conqueror, Henry the First, and after that about Stephen of Blois and Henry II. And I think, and I'm sure about it, that you must have clear these things. In this lecture, I will explain different kings after John II, as I am giving you the summary that after Henry II, he had two sons, one Richard I, and the second one was John. We have discussed about Richard, that how he spent his time as a king, and after that we have discussed about John. Now in this we have also covered the main aspect which John has covered in his kingdom, and which are about the Magna Carta, which was the great charter, and it was the start of our modern parliament which we have in England. So in this lecture I'll explain after the John time after John and the time after Magna Carta. Okay, so here we will discuss about Henry III. Firstly, we will discuss about Henry III after the death of John in 1216. Henry III, who was the son of John, he became the king of England, and his age at that very time was 9 years. So at that very time, as we have discussed, that kings of England were not only controlling England, but they were also in control of some portion of France. So here Henry III was 9 years old, and he did not have father. So he was under the control of French nobles. What he was the control of French nobles. So French were responsible for his growing for his growth. So he was controlled by French. Because of this thing, many English noble were against Henry III. So I'm not saying that it was the time that आफ्टर 9 years के वो जैसे 9 year के बाद किंग बने उसके बाद जो है डायरेक्टली इंग्लिश किंग इनके इंग्लिश नोबल्स जो है इनके खिलाफ हो गए, ऐसा नहीं है। ये जो है फ्रेंच जो है उनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, वहाँ पे इनकी ग्रोथ हो रही थी, वहाँ पे ये बड़े हो रहे थे। उसी के साथ साथ जो है विद द टाइम जो है उनकी इंक्लिनेशन जो है दैट वर टूवर्ड्स फ्रेंच कल्चर, टूवर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो सारा के सारा जो है वो फ्रेंच के तौर तरीकों को जो है वो फॉलो कर रहे थे। बिकॉज ऑफ विच एट द एंड people or and noble of England were against him. So the first point which we have covered so far is that he was under the control of French, and the second thing that nobles were against him. And as I have mentioned here, as a class mean when you work as one group to control people or to impose your decision. जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मैग्ना कार्टा के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये नोबल जो है ये इनके खिलाफ हो गए, मर्चेंट्स इनके खिलाफ हो गए, तो इन्होंने एज अ क्लास एक क्लास बन के, मतलब एक ही फिलोसफी को फॉलो करना या एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना कि हमने जॉन को जो है ये बात मनवानी है कि वो जो हम पे टैक्सेस लगा रहे हैं या लैंड्स जो है हमसे चोरी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमने हटाना है, जॉन पे ये मनवाना है। तो आप एज अ वन क्लास जो हो एक उसमें जो है एक ही चीज़ पे आप मुत्तफिक हो जाते हो, और उस चीज़ को पाने के लिए आप जो हो एक जैसी सोच रखना स्टार्ट कर देते हो। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आपको किसी टीचर से प्रॉब्लम है, या कोई टीचर आपको सही नहीं पढ़ा रहा, तो आप लोगों की और सोच तो है, वो तो डिफरेंट है, लेकिन इस पर्पस के लिए आप एज अ वन क्लास जो है वर्क करना स्टार्ट करो। तो ये जो है नोबल ने इस टाइम पे क्या किया कि एज अ वन क्लास जो है वो इन्होंने इस चीज़ को देखना स्टार्ट किया कि ये हेनरी द थर्ड जो है ये तो बिल्कुल फ्रेंच के कंट्रोल में हो रहा है, और ये तो इंग्लिश मतलब इंग्लैंड को नुकसान पहुंचाएगा, और सारी बातें जो है वो फ्रेंच नोबल्स की मान रहा है, जो कि खतरे का बायस बनेगी फ्यूचर में इंग्लैंड के लिए। सो फॉर द पर्पस दे डिड, इन्होंने जो है रिबिलियन किया, किसके खिलाफ? हेनरी द थर्ड के खिलाफ इन्होंने रिबिलियन किया, मींस उनकी खिलाफ वर्जी की। और ये किसने हेड किया, कौन लीडर था इसका? साइमन डी मोंफोर्ट। सही स्पेलिंग चेक कर लें, शायद यहाँ पे आए हो। साइमन डी मोंफोर्ट ने जो है 1258 में पहली बार जो है वो पार्लियामेंट का जो है वो इनेकाद किया, मीन पार्लियामेंट जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई। अभी ये पार्लियामेंट जो है आजकल जो हम देख रहे हैं इस तरह की पार्लियामेंट नहीं थी कि जो पार्लियामेंट में फैसला होगा बस वही इम्पोज कर दिया जाएगा। ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की पार्लियामेंट थी, इनके पास इतने वो नहीं थे, मतलब इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो एक फैसला ले सके। बस ये था कि अभी जो है जिस तरह हमने मैग्ना कार्टा में डिस्कस किया था कि हमने कुछ रूल्स जो है वो मैग्ना कार्टा में हमने डिस्कस किए थे, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा बाउंड हो गया था कि
क्या कहते हैं, किंग जो है वो थोड़ा-सा बाउंड हो गया था। इसी तरह जो है इसमें भी किंग को थोड़ा बाउंड करने के लिए, या किंग को जो है लोगों का एहसास करने के लिए, या किंग जो है ये फ्रेंच के कंट्रोल में जो आ रहा है और उसकी डिसीजंस जो है वो खराब हो रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ये चीज़ जो है वो इन्होंने की, पार्लियामेंट बनाया। और ये पार्लियामेंट को जो है काउंसिल ऑफ नोबल्स मीन्स नोबल्स का एक जमगट्ठा, मीन्स नोबल का की एक क्लास, नोबल का एक ग्रुप उसमें बैठेगा, और वो जो है उसको हम पार्लियामेंट कहेंगे, जो डिफरेंट डिसीजंस जो है वो बनाएगा। और ये डिसीजन जो थे अक्सर किस बेस पे थे? ये पॉलिटिकल बेस के डिसीजन थे, सही है? ये पॉलिटिकल बेस के डिसीजंस थे। मतलब इसमें इकोनॉमी या किसी और चीज़ का इतना इन्हिसार नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। अच्छा, इस पार्लियामेंट में जो थे ना, इस पार्लियामेंट में मेन लोग जो थे उसको जो है लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि अभी भी जो है मौजूद है इंग्लैंड में, तो इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो कहा गया। नाउ बेटा, अभी आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि द फर्स्ट थिंग व्हिच स्टार्टेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड वाज़ मैग्ना कार्टा, सही है? जो कि हम इससे पहले जो है तफ़सील में जो है बयान कर चुके हैं कि जो कि 1215 में जो है स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हमारे पास ये डेमोक्रेसी की तरफ जो है, या आजकल के निज़ाम की तरफ जो इंग्लैंड में है, या पाकिस्तान भी इंग्लैंड के ही निज़ाम को फ़ॉलो कर रहा है, उसमें जो है मैग्ना कार्टा के बाद जो सेकंड स्टेप था कि ये मॉडर्न पार्लियामेंट की तरफ जो है जाने का पहला सेकंड स्टेप था, ये जो था वो ये वाला स्टेप था, जो कि साइमन डी मनफोर्ट ने जो है वो लिया था पार्लियामेंट बनाने का। अभी यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम इंग्लैंड की पार्लियामेंट को देखें, तो उसमें जो है एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, एक हाउस ऑफ कॉमन होता है। जिस तरह हमारे पार्लियामेंट में एक सेनेट होता है और एक पार्लियामेंट होता है, इस तरह जो है अमेरिका में जो है वो कांग्रेस वगैरह होते हैं। तो ये जो है 2 बेसिक चीज़ें होती हैं, 2 बेसिक वो होती हैं। तो ये पहली बॉडी जो है, 2 बेसिक बॉडी होती है गवर्नमेंट की, तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अभी आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आप इस चीज़ को याद करें कि इंग्लैंड का सिस्टम कैसा है। बस आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि कैसे ये आजकल का इंग्लैंड का सिस्टम जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, और कैसे ये जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इसके बाद का किंग जो है वो इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई कर लेता है, तो वो जो है हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सो ये था हमारे पास हेनरी द थर्ड के बारे में। सो आई विल समराइज इट दैट हेनरी थर्ड वाज इन कंट्रोल, और he was influenced by French nobles, and he was supporting French and his culture. He was supporting French culture, French language. So because of all these reasons, and he was taking political decisions under the control of French. So all these reasons caused English nobles to work against him. लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस तरह नहीं होता था कि एक नोबल जो है, अगर फॉर एग्जांपल 50 नोबल है, तो वो 50 के 50 नोबल्स जो है वो एक किंग के खिलाफ हो जाए। कभी कभार इस तरह होता है कि अक्सर नोबल किंग के खिलाफ होते हैं, लेकिन कुछ नोबल्स जो है फिर भी किंग का साथ देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन था कि हेनरी द थर्ड जो है उसको कुछ नोबल्स ने जो है, हेनरी द थर्ड को कुछ नोबल्स ने जो है वो सपोर्ट किया, और उन नोबल्स की सपोर्ट की वजह से जो है 1262 में है कि 1265 में जो है क्या किया, 1265 में जो है क्या किया, इस बंदे को जो है मार दिया गया, सही है? साइमन डी मनफोर्ड को जो है मार दिया गया, और ये बात जो है, जो इम्पोजिशन थी, ये चीज़ें जो है वो कुछ हद तक जो है वो कम कर दी गई या ख़त्म कर दी गई। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अभी हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि आगे जो है हमारे लिए मतलब क्या चीज़ जो है हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो है बेटा, आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। पहले के स्लाइड्स में जो है अगर हम देखें, तो वो हमने विलियम के मतलब आबा अजदाद और विलियम की चीज़ों को जो है वो हमने एक्सप्लेन किया था, जिस तरह विलियम द कनकरर, रूफस, हेनरी द फर्स्ट एंड हेनरी द सेकंड। अभी इसके बाद जो है हम हेनरी द सेकंड का जो मेन वो है ना, हेनरी द सेकंड की जो लिनिएज है, हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हेनरी द सेकंड को डिस्कस किया, फिर रिचर्ड को डिस्कस किया, फिर हमने जॉन को डिस्कस किया, और आज के लेक्चर में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? आज के लेक्चर में हम ये हेनरी द थर्ड को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। हेनरी द थर्ड को हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसके बाद जो है हम आगे मूव करेंगे, और हेनरी द थर्ड के बेटे को जो है हम डिस्कस करेंगे, जिनका नाम था एडवर्ड द फर्स्ट। अभी एडवर्ड द फर्स्ट के बारे में जो चीज़ें मशहूर है वो यहाँ पे मैंने लिखी है, एंड वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन इट, एंड यू पीपल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो एडवर्ड द फर्स्ट जो है, ही वाज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंशियल इन इन डिफरेंट सेंस, कि ये जो है इन्होंने सबसे पहले जो है इन्फ्लुएंशियल इस बेस पे थे कि इन्होंने, जिस तरह हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा कि हेनरी द थर्ड ने जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स सिर्फ बनाया था इस काउंसिल ऑफ नोबल्स में। इन्होंने क्या किया, अब ये लोग जो थे पैसे जमा करना और डिसीजन लेना, इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने जो है एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन भी बना दिया। हाउस ऑफ कॉमन जो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ कौन थे? नोबल्स होते थे। हाउस ऑफ कॉमन में जो है नाइट आ गए थे, सही है, मर्चेंट्स आ गए थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था, मर्चेंट्स।
और फ्री मैन भी जो थे वो भी हाउस ऑफ कॉमन में आ गए थे। तो इन्होंने जो है अभी पार्लियामेंट को थोड़ा ब्रॉडन कर दिया था, जो कि हेनरी द थर्ड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। इसने हाउस ऑफ कॉमन भी डाल दिया और इसने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बना दिए। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि अभी जो पैसे या जंग हो रही है या कोई पैसे की ज़रूरत है, तो ये नाइट्स, मर्चेंट्स, फ्री मैन, ये सारे जो हैं आके यहाँ पे पैसे जमा करेंगे या फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को देंगे। और इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है इसके बारे में, वो ये था कि इसको जो है कहा जाता है हैमर ऑफ स्कॉट्स। हैमर ऑफ स्कॉट, हैमर जो है हथौड़े को कहते हैं। मीन्स कि इसने जो है, इसका एक मेन मकसद ये था कि मैं क्या करूं, इंग्लैंड को क्या करूं कि यूनिफाइड करूं। ये इसमें ज़्यादा वो नहीं था कि इंग्लैंड और फ्रांस के ताल्लुक कैसे हैं या किसके ताल्लुक कैसे हैं। इसका ज़्यादातर मेन फोकस किस चीज़ पे था कि मैं इंग्लैंड को यूनिफाइड करूं। तो इसके लिए इन्होंने जो है क्या किया कि इन्होंने जो है स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के कंट्रोल में लाने की जो है वो कोशिशें स्टार्ट कर दी। जिस तरह के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लैंड वाज कंट्रोलिंग ऑलवेज, वांटेड टू कंट्रोल स्कॉटलैंड, बट स्कॉटलैंड जो था वो एंड तक जो था वो फ्री रहा था, क्योंकि उसके कुछ रेबल्स थे, कुछ लोग थे जो कि इंग्लैंड के साथ ये चीज़ें नहीं मान रहे थे। तो इनको जो है एडवर्ड द फर्स्ट ने सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में स्कॉटलैंड को नुकसान पहुंचाया है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर था और इसको हैमर ऑफ स्कॉट्स का नाम भी दिया गया। इसने जो है स्कॉटलैंड पे बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज की, जिसकी वजह से उन्होंने रेबेलियन किया और बहुत सारी रूल्स थे कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इम्पोज कर दी गई थी कि जिससे स्कॉटिश बहुत तंग थे। जैसे कि अगर एक बंदा जो है, स्कॉटिश बंदा शादी करेगा, तो पहली रात जो है शादी की, वो एक नोबल के साथ जो है, इंग्लिश नोबल के साथ उसकी बीवी जो है वो टाइम स्पेंड करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे बहुत स्कॉटिश तंग थे। तो इसकी वजह से जो है डिफरेंट स्कॉटिश रिबेलियन जो थे, विलियम वॉलिस और रॉबर्ट ब्रूस का नाम उनमें मशहूर है, ये इनके खिलाफ उठे और इनके खिलाफ जो है वो बहुत जंगें की। और इसमें जो है विलियम वॉलिस ने भी एक जंग में जो है वो कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद जो है उसको पकड़ के मतलब सबके सामने, इंग्लैंड ला के सबके सामने जो है उनको कत्ल कर दिया गया। और रॉबर्ट ब्रूस ने जो है वो, उन्होंने भी एडवर्ड दी फर्स्ट और एडवर्ड दी सेकंड के खिलाफ जो है 2-3 जंगें लड़ी, जिसमें सब जंगों में जो है वो उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की। अभी जो है हमने हेनरी द सेकंड, रिचर्ड द फर्स्ट, जॉन, हेनरी द थर्ड एंड एडवर्ड द फर्स्ट तक जो है वो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कशन करेंगे एडवर्ड द सेकंड और एडवर्ड द थर्ड पे। और ये आपकी इस वीक के लिए जो है फिर इतना ही।